ملتان شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ تجاوزات مافیا نے اسپتالوں کو بھی نہ بخشا۔ نشتر اسپتال کے باہر تجاوزات مافیا نے ایمبولینسز کا گزرنا بھی مشکل کر دیا۔ ملتان میں تجاوزات مافیا نے نشتر روڈ پر پنجے گاڑ لیے۔ نشتر روڈ پر جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار ہے۔ ہاسپٹل کے مین گیٹ کے سامنے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، مگر انتظامیہ اس حوالے سے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ ہاسپٹل تک آنے میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں یہ تو پھر انتظامیہ کا کام ہے نا، تو مسئلہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب ٹریفک جام ہوتی ہے تو لازمی بات ہے ٹریفک زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو مریض اتنی دیر میں وفات پا جاتی ہے، جو زیادہ سیریس مریض ہوتی ہے، تو اس کا کوئی تھوڑا سا دیکھ بھال کر دی چاہیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ میونسپل کارپوریشن نے تجاوزات مافیا کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے نشتر ہاسپٹل کے گیٹ کے سامنے بھی تجاوزات مافیا نے قبضہ جما رکھا ہے۔ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب روڈ بلاک ہوتا ہے، مریض کی ٹینشن بھی بہت خراب ہوتی ہے، بعض اوقات جان بھی چلی جاتی ہے مریض کی۔ انتظامیہ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ روڈ کھلا کرنا چاہیے یا یہ رش ہے یہ ختم کرنا چاہیے۔ شہر میں جگہ جگہ تجاوزات ضلعی اور میونسپل انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہاسپٹلوں کے باہر سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ کیمرہ مین AD نواز کے ساتھ اون عباس، روہی، ملتان۔ ترنڈا محمد پناہ میں موٹر وے پولیس سپیڈ پائس کی مبینہ نااہلی، قومی شاہراہ منڈی مویشیاں میں تبدیل۔ جانوروں کی خرید و فروخت منڈی مویشیاں کے بجائے قومی شاہراہ پر ہونے لگی۔ شہری اور مسافروں کو آمد میں دشواری کا سامنا ہے، جبکہ ٹریفک حادثات بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ ترنڈا محمد پناہ میں قومی شاہراہ منڈی مویشی میں تبدیل ہو گئی۔ قومی شاہراہ پر سفر کرنے والوں کو دشواری کا سامنا۔ ہر بدھ کے روز لگنے والی منڈی مویشی میں جانوروں کی خرید و فروخت قومی شاہراہ پر ہونے لگی۔ شاہراہ پر جانوروں کے ساتھ بیوپاریوں اور گاہکوں کا رش ہوتا ہے، جس کے باعث ٹریفک حادثات ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ہر بدھ تک مویشی منڈی ہوندی ہے، اکبر چوک کو لاتے تے کچی محمد خان تک نہ روڈ دے تے جگہ رش ہی رش ہوندے ہے۔ اس طرح نہ کئی ویلے بھی حادثات رونما تھی سکتے ہیں۔ زیادہ تر جڑے نا ذمہ دار مال گھنتے امن اور روڈ تے کرن کو ترجیح دیندے ہیں۔ حالانکہ نال بھائی زمین بھی پئی ہے، لیکن موٹر وے انتظامیہ تک کوئی ایکشن نہیں کرندی۔ شہری کہتے ہیں ہر بدھ منڈی مویشیاں لگتی ہے، اس دوران قومی شاہراہ سے گزرنا محال ہوتا ہے۔ موٹر وے پولیس شاہراہ کو کلیئر رکھنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ متعدد بار شکایات کی گئیں مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ اتنا روڈ دیتے جانور کٹھے تھی وین، موٹر وے پولیس والے آمدن صحیح کرنے والا کٹھے تھی وین، اتنا بہت زیادہ ناکام ہے۔ مطلب حادثے تھی ون دا خطرہ انہیں، ٹریفک بہت زیادہ پریشان تھی، عوام بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ شہریوں نے SP موٹر وے رحیم یار خان سے مطالبہ کیا ہے کہ قومی شاہراہ کو کلیئر رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کیمرہ مین فیاض بلوچ کے ساتھ غلام علی، روہی، ترنڈا محمد پناہ۔ غلہ منڈی چشتیہ میں سہولیات کا فقدان، جبکہ کسان پریشان۔ منڈی میں کاشتکاروں کی فصل عدم تحفظ کا شکار۔ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے رات کے وقت غلہ منڈی تاریکی میں ڈوب جاتی ہے۔ چشتیہ کی غلہ منڈی انتظامیہ کی بھیڑ چڑھ گئی۔ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والے کسان پریشان۔ کپاس کی فصل منڈی میں عدم تحفظ کا شکار ہے۔ سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے غلہ منڈی رات کے وقت اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ منڈی میں روزانہ کی بنیاد پر 50,000 من کاٹن کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، پھل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اسٹریٹ لائٹ رات کو جو لائٹ نہیں ہے اور فائر پوائنٹ بند ہے۔ خدا نخواستہ کسی بھی حادثے کی صورت میں پانی آگ بجھانے کے حالات نہیں ہیں، تو یہاں سے جو ہے لاکھوں روپے مارکیٹ کمیٹی کو فیس جاتی ہے، اور ملکی معیشت میں جو غلہ منڈی کا کاروباری طبقہ ہے وہ بہتر کردار ادا کر رہا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ اس بابت خصوصی توجہ دی جائے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ غلہ منڈی میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے۔ فائر پوائنٹ کا نظام بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی خاص انتظامات نہیں ہیں۔ جتھے روح سٹنی اتنے نہیں پانی کھلو جاتا، ساری گل جاتی، گندم جیڑی آئی ہے وہی ساری گل گئی بارش نہ۔ غلہ منڈی سے ریونیو کی مد میں انتظامیہ کو کروڑوں روپے فیس ادا ہوتی ہے، پھر بھی غلہ منڈی میں سہولیات کی فراہمی نہیں ہے۔ معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کسانوں کو ہر صورت ریلیف فراہم کرنا پڑے گا۔ کیمرہ مین محمد عبید اللہ کے ساتھ زاہد حسین ہاشمی، روہی نیوز، چشتیاں۔ لیا میں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ حکومتی پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے زیر اہتمام مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے مطالبات منظور نہ ہونے پر لاہور میں دھرنے کا اعلان کر دیا۔ لیا میں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ حکومت کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ پریس کلب کے باہر پنجاب ٹیچرز یونین کے زیر اہتمام مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے مطالبات کے حق میں خوب نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت برطرف اساتذہ کو بحال کرے اور حکومت سرکاری اسکولوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس لے۔ جن کو برخاست کیا گیا ہے ان کی بحالی کے لیے اور لیو انکیشمنٹ کی واپسی
और पेंशन में जो तरमीम की हैं उसके बारे में, और खास बिल खसूस जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है उसके बारे में था। आज लिया उसकी एक कड़ी लिया प्रेस क्लब के सामने आज हम मौजूद हैं। लीव इनकैक्शन पेंशन के कवानीन को फौरन खत्म किया जाए और बहाल की जाए, और उसके साथ अगर हमारे ये मुतालबात ना माने गए तो पंजाब टीचर यूनियन लीग या पंजाब जॉइंट टीचर अलायंस पूरे सूबा पंजाब में 11 नवंबर को भरपूर एहतजाजी धरना देगी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने सार्वजनिक हकूक गस्ब करना शुरू कर दिए हैं। लीव इनकैशमेंट समेत दीगर मुतालबात फौरी तस्लीम किए जाएं। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में लाहौर में धरना दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। जिला गाजी खान जिला इंतजामिया शहरियों के मसाइल हल करने के लिए कोशां है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर हिदायत भी जारी की। डीजी खान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद। रोही से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अब डीसी ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद होगा। साइलिन रोजाना 9:30 से 11:30 बजे तक अपनी शिकायत लेकर खुली कचहरी में आ सकते हैं। आम पब्लिक के लिए, साइलिन के लिए सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक का जो टाइम है वो वक्फ किया गया है। इसमें हम कोई और हम जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो उसमें कोई नहीं रखते, सिर्फ हम लोगों को सुनते हैं, उनके मसाइल को सुनते हैं। हमारे पास पूरे ज़िले में से लोग आते हैं, जिसमें से जो भले उनका किसी भी महकमे से मुतल्लिका उनका मसला हो, वो सेहत हो, तालीम हो, जो भी उनके मसाइल होते हैं, हमारे पास उनके हल के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसको हम CMS बोलते हैं, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उनकी कंप्लेंट्स वहाँ पर रजिस्टर होती हैं और डायरेक्शंस पास हो जाती हैं। 15 दिनों के अंदर अंदर हम उनकी रिपोर्ट तलब करते हैं। कंसर्न जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उन मसाइल को हल करने के बाद हमारे पास रिपोर्ट देते हैं। अगर कोई मसाइल हल नहीं होते तो उसके बाद हमारे वो रडार में होते हैं, हम उनकी जो रिपोर्ट है वो तलब कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुनकर अजाले के लिए मुतल्लिका इदारों को फौरी हिदायत जारी करता हूँ। ट्रायल एरियाज समेत दूर दराज के साइलिन की सफरी मुश्किलात के पेश नजर मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी खुली कचहरियां लगाने की हिदायत दी हैं। गवर्नमेंट ने ये भी डायरेक्शंस दिए हैं कि जो हर तहसील का जो AC है वो भी अपने ऑफिस में खुली कचहरी लगाएगा। अगर कोई लोग हमारे पास नहीं आ सकते तो वो अपनी तहसील में अपने मुतल्लिका अफसर के पास जाके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और वहां से उनका वो मसला हल हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शहरियों के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। मुल्तान में एक्साइज ऑफिस रोड पर सीवरेज का पानी जमा। शहरियों का कहना है कि सीवरेज का पानी खड़ा होने से वबाई अमराज भी बढ़ गए। मजीद जानेंगे ज़ुहैब बुखारी से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल, मुल्तान के एक्साइज ऑफिस रोड पर जो है वो सीवरेज का पानी मौजूद है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से भी यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी अगर आपको जो मनाजिर दिखा सके तो ये यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो इस प्लाट में जो है वो दाखिल हो चुका है और उसके साथ साथ रिहायशी मकानों को भी ये जो पानी है सीवरेज का वो नुकसान दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बिल्डिंग मटीरियल भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, सीवरेज का पानी यहाँ पर जमा है, कितने अर्से से ये मुश्किलात का? ये 2-3 माह से ये गटर लाइन खराब है, यहाँ पे सीवरेज का पानी भी खड़ा होता है और रात की तारीखी में तकरीबन 1-2 बजे के करीब चोरी डकैती की वारदात यहाँ स्लो ट्रैफिक होने की वजह से होती है। बहुत से शहरी यहाँ से लूटे जाते हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम तो कितनी मरतबा ये बयान दे चुके हैं लेकिन अमल दरामद इस काम में नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी है यहाँ पर? जी सर, हमारे ये सामने दुकान ही है तो इसकी वजह से हमारा AC का सीज़न था वो बंद हो गया तो यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाती है, कोई रास्ता नहीं होता। गाहक यहाँ से ही आते हैं तो रुक जाते हैं यहाँ पर आकर। तो उसके अलावा भी यहाँ पर हादसात वगैरह का शिकार हैं। यहाँ पर जैसे ही ट्रैफिक जाम होती है बंदे तेज़ी से भगाते हैं बाइक्स वगैरह, यहाँ पर वो शिकार होते हैं उसका हादसे का। तो जी हादसात का शिकार भी जो है वो यहाँ पर होना मामूल बन चुका है, जबकि चोरी और डकैती की वारदात भी जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। और यहाँ पर गुजरने वाले जो शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि इस रोड की जल्द तमीर और मुरम्मत की जाए। साथ साथ जी ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। अमलसी में अफसोसनाक वाक़या, कुएं में काम करते हुए तोदा गिरने से एक मजदूर दब गया। लोग अपनी मदद के तहत मजदूर को निकालने की कोशिश में मसरूफ। अहले इलाका का कहना था कि मजदूर पुराने कुएं से ईंटें निकाल रहा था। भावलनगर में कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्टा का एक रोजा दौरा। कमिश्नर बहावलपुर ने तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। KPI से मुतल्लिक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में DC, DPO समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। DC ने मंसूबा बारे कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर का कहना था कि अफसरान रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा करवाएं।
इजलास में डीसी, डीपीओ समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। डीसी ने मंसूबों बारे कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। बूरेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर का टीएचक्यू अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी में डिस्पेंसर की जगह डॉक्टर का भाई इंजेक्शन लगाते पकड़ा गया। ड्यूटी डिस्पेंसर को मुअत्तल कर दिया गया। एसी ने डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अब आपको बताएं, मियांवाली में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। साबिक हुकूमत के 83 तरक्याती मंसूबों को खत्म कर दिया गया। साबिक दौरे हुकूमत में 220 तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए थे, जबकि बाद में मजीद 5 मंसूबों की मंजूरी भी दी गई। मियांवाली में साबिक दौरे हुकूमत के कई तरक्याती मंसूबों को खत्म कर दिया गया। साबिक दौरे हुकूमत में 220 तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए थे, जबकि बाद में मजीद 5 मंसूबों की भी मंजूरी दी गई थी। अभी तक 62 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 80 मंसूबों का तामीराती काम ताहाल जारी है। इन मंसूबों में सेहत, तालीम और खेलों के मंसूबे शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक 83 मंसूबों के लिए 2024-25 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में कोई फंड नहीं रखा गया। मियांवाली में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल डीएचक्यू अस्पताल की नई इमारत का मंसूबा खत्म कर दिया गया। इमारत पर 30 करोड़ रुपए खर्च हो चुकी है। मंसूबा 3 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाना था। बांग्लादेश कॉलेज का मंसूबा भी रोक दिया गया। रूरल हेल्थ सेंटर कुनिया को टीएचक्यू का दर्जा दिया गया था, ये मंसूबा भी खत्म कर दिया गया है। हरदौली बुनियादी हेल्थ यूनिट को रूरल हेल्थ सेंटर का दर्जा दिया जाना था, हुकूमत ने इस मंसूबे को भी ड्रॉप कर दिया है। सर्किट हाउस का तामीराती काम 80% से ज्यादा मुकम्मल हो चुका है। इस मंसूबे के लिए भी फंड नहीं रखे गए। सबसे ज्यादा तहसील पिपला के मंसूबों को ड्रॉप किया गया है। अवामी समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि ड्रॉप किए गए मंसूबों को फौरी तौर पर शुरू किया जाए, ताकि मियांवाली भी तरक्की की राह पर गामजन हो सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। खुश्क मेवाजात मौसम सरमा का अनमोल तोहफा है। खुश्क मेवाजात खुश जायका होने के साथ सेहत बख्श भी होते हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहर में खुश्क मेवाजात की दुकानें भी। खुश्क मेवाजात को मौसम सरमा की खास सौगात समझा जाता है। मौसम में तब्दीली के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो गया। मुल्तान शहर में पिस्ता, बादाम, काजू, चिलगोजा, खुबानी समेत दीगर ड्राई फ्रूट्स की दुकानें सज गई हैं। खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ने से दुकानों पर खरीदारों का रश लग गया। मूंगफली की कीमत 600 से 1200 रुपए फी किलो है। मैं ये ड्राई फ्रूट लेने आया हूँ। मैं पंजीरी का सामान बनाऊंगा। ये देखें, मैं खोपरा लेने आया हूँ, बादाम लेने आया हूँ। इस टाइम पे ड्राई फ्रूट बड़ा महंगा हो रहा है, तो मैं पलवानी करता हूँ। ये मैं अपना ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, ये बड़ी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ड्राई फ्रूट बेचने वालों के मुताबिक पिस्ता 3500 से 4000 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। बादाम की मुख्तलिफ अक़साम 1000 से 3500 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही हैं। काजू 4000 रुपए फी किलो, जबकि चलगोजा 16000 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। अखरोट 700 रुपए किलो है। पुराने वाला जो नया अखरोट है 1040 रुपए किलो है। और चना है कुछ बाहर से आ रहा है, उसकी चना कुछ महंगा हुआ है। अल्लाह पाक उस पर आसानी फरमाए। शहरी कहते हैं कि खुश्क मेवाजात मौसम सरमा का मजा दोबाला कर देते हैं और इनका इस्तेमाल सेहत के लिए भी मुफीद है, मगर महंगाई के बायस इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्तान में सर्दियों की आमद की नवीद सुनते ही मुख्तलिफ जगह पर ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल सजा दिए गए हैं, जहां पर शहरी अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।